Okay, welcome to you all. Today we are going to start our third lecture for CA Foundation Business Law course. And now today in our third lecture, what we are going to see is that actually we are going to enter in your syllabus. As I have already told you that dividation of the subject is into the two part. You all know. Number one part is the business law, which is for 60 marks. Number two part, that is business correspondence and reporting, that is for a 40 marks. Okay, out of that we are going to deal, that is actually I'm going to teach you the business law part for a 60 marks. Now in that business law part, total 5 acts you are going to study. You all are aware. Okay, and yesterday I have told you the difference between the term law, act, statute. That all points yesterday we have discussed in our lecture. Okay, so in your syllabus of the business law, totally how many acts we are going to study? We are going to study the total 5 acts. Okay, now that total 5 acts we are going to study in your syllabus have their own weightage. हर act का अपना paper में क्या वहाँ पे weightage है, and in that all 5 acts the most weightage is given to the first subject, that is Indian Contract Act. क्योंकि बाकी के जो चारों लॉज है, उन चारों लॉज को समझने के लिए आपको सबसे पहले किसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडरस्टैंड करोगे तभी आपको सेल ऑफ गुड्स समझ में आ जाएगा, तभी आपको पार्टनरशिप और बेहतर समझ में आ जाएगा, तभी आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप समझ में आ जाएगा. क्योंकि देखो ये बाकी भी कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, सेल करना एक कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप करना एक कॉन्ट्रैक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक तरह का लोग साथ में आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है. इसका मतलब समझ में आ रहा है. बाकी सारे लॉज को समझने के लिए first of all you should know the Indian Contract Act. Okay, so the very first subject we are going to start from your syllabus is the Indian Contract Act 1872 is the very first subject we are going to start from syllabus. Okay, now the total 5 topics or total 5 units or total 5 acts you are going to study in your syllabus is are number 1, we will deal with the Indian Contract Act, which we today actually going to start. Also, you all are aware, Indian Contract Act 1872. Now, this particular law is going to explain you what is meant by the contract. In what circumstances the contract will be binding on the parties? What if you make a breach of the contract? All these things you are going to study in this particular Indian Contract Act 1872. Then number 2 law you are going to deal will be Sale of Goods Act 1930. Okay, goods. If I want to sell my TV, if I want to sell my computer, if I want to sell you my car, if I want to sell you my mobile, the law which is going to be applied in that particular case will be Sale of Goods Act 1930. If I want to sell you my house, then this law is not going to be applied. Be clear with the point. Okay, if I'm going to sell you my house, the property is not a goods. Na, house is not considered to be goods. मेरा ये जो रहता घर है ये गुड्स नहीं है ना. घर क्या है बोलो? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. घर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो मैं घर बेचूंगी तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या वहां पे? नहीं. अगर मैं आपको अपना घर बेच रही हूँ तो हमारे इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एक सेपरेट लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. वहां पे क्या होगा? एप्लीकेबल होगा. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब एप्लीकेबल होगा बोलो? ओनली इफ यू वांट टू सेल मूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली इफ यू वांट टू सेल द गुड्स. हमें इस लॉ में गुड्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन अंदर वापस देखनी है कि गुड्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा. ओके, नाउ अभी के लिए just a simple thing, the number 1 act we are going to start is the Indian Contract Act 1872. Then we will deal with the Sale of Goods Act 1930. Then Indian Partnership Act 1932 will be the another law which we will deal. Okay, पार्टनरशिप, दो लोग साथ में आके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, और वो बिजनेस कंपनी फॉर्म नहीं है, वो बिजनेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है. हाँ, वो बिजनेस क्या है वहां पे? पार्टनरशिप, प्लेन पार्टनरशिप है. हाँ, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होगा? वहां पे एप्लीकेबल होगा. हाँ, देन एक न्यू कंसेप्ट 2018 में वो लेके आया, 2008 में वो लेके आया, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप जो थी वो नॉर्मल पार्टनरशिप क्या थी बोलो? वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी थी. अगर फर्म के प्रॉपर्टी को बेच के लोन सेटिस्फाई नहीं हुआ
तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें लायबल होगी। मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बोलो? नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ये बेसिक नॉलेज आप सबको है कि पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें चली जाएगी, लेकिन अनलिमिटेड पार्टनरशिप ये एक तरह से क्या था बोलो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाले पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज था, और उस डिसएडवांटेज को कवर अप किसमें किया या उसमें सॉल्व किसको किया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में उसको क्या कर दिया उन्होंने? सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे दे इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट उतनी लायबिलिटी। दैट इज क्या होगा वहां पे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 वहां पे होगा। हाँ, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो, ये लॉ कंपनीज एक्ट 2013 आपके साथ में इंटरमीडिएट लेवल पे भी होगा, और ये लॉ आपके साथ में फाइनल में भी होगा। इवन आपको टैक्स कंसल्टेंट आप बन जाओगे, दैट इज सी आप बन जाओगे, तब भी आपके साथ में ये एक्ट होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ज्यादा मैटर करता है फ्रॉम ऑल द लेवल ऑफ द सीए कोर्स। ओके, सो अभी के लिए हमें यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत बेसिक नॉलेज दी है। हाँ, लाइक कंपनी क्या है, हाँ, कंपनी के एडवांटेजेस क्या है, कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या है, हाँ, कंपनी के टाइप्स क्या है, इतना बेसिक। कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, तो बहुत 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 बेसिक नॉलेज हमें क्या किया वहां पे कंपनी का दिया हुआ। इन डेप्थ वहां पे कहीं से भी कंपनी हमारे स्टडी में नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन पूरा कंपनी लॉ आपको पढ़ना है आगे जाके, और उसका इंट्रोडक्शन हमें सीए फाउंडेशन कोर्स में क्या करना है? स्टडी करना है। ओके, सो इन टोटल हाउ मेनी एक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी? इन टोटल यू आर गोइंग टू स्टडी द एक्ट्स दैट आर 5 acts: Indian Contract Act 1872, Sale of Goods Act 1930, Indian Partnership Act 1932, Limited Liability Partnership Act 2008 एंड कंपनीज एक्ट 2013। ये सारे एक्ट्स हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्टडी करेंगे। हाँ, नाउ एज ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ भी हो जाए कम से कम आउट ऑफ 60 मार्क्स, आपका कम से कम 12 to 15 मार्क का वेटेज जो होगा वो कंपल्सरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को होगा। शायद कभी कभी 12 to 15 से ज्यादा भी हो सकता है, बट 12 to 15 मार्क का वेटेज तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को होता ही है। और कॉन्ट्रैक्ट के नॉलेज पे ये बाकी नॉलेज भी डिपेंड करता है। ओके, सो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट एक्ट फ्रॉम योर सिलेबस कौन है बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। हाँ, now today what we are going to do is that already morning I told you that we are going to enter into the introduction to the Indian Contract Act. Okay, just Indian Contract Act आया कैसे, पास कैसे हुआ, हाँ, वो एप्लीकेबल कैसे हो गया, उसके जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स आज हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we will enter into your module. Okay, so tomorrow's lecture you will need the module. यहाँ तक ध्यान में आ गया? टोटल सिलेबस के एक्ट्स, और उसमें इन जनरल एक स्मॉलर इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बताया अभी के लिए कि आपको उसके अंदर क्या पढ़ना है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोग क्या करें? स्टार्ट करें। ओके, सो आउट ऑफ 5 parts you have in your syllabus, first part which is there is called as a Indian Contract Act 1872 is the first part's name. Now देखो, very first thing, year, 2 मिनट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला जो हिस्सा है वो 2 मिनट के लिए क्या करते हैं हम लोग? छोड़ देते हैं। हाँ, पहली चीज उस एक्ट का ईयर देखो। हाँ, व्हाट इज द ईयर ऑफ द एक्ट? 1872। नाउ दिस मेक्स इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या क्लियर करता है हम सबको ये? 1872 मतलब ईयर कौन सा था? जब ब्रिटिशर्स वे रूलिंग ओवर इंडिया, ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे, तब का ईयर है। तो ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो लॉ स्पेसिफिकली जो आज की इंडियन पार्लियामेंट है उसने बनाया हुआ नहीं है। ये लॉ बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने, बट वो पार्लियामेंट, हाँ ऑफ कोर्स इंडिया की थी, बट रूलर कौन थे वहां पे? ब्रिटिशर थे। तो ब्रिटिश इंडिया में ये लॉ बना गया है। हाँ, ये लॉ यहाँ पे बनाया गया है, ब्रिटिश इंडिया में ये लॉ बनाया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि 1600 में ब्रिटिशर्स एंटर इंडिया एज अ बिजनेसमैन, एंड देन आफ्टर दे स्टार्टेड टू spread up their power in India. Finally, actually in the year 1947 we actually
पुश देम आउट ऑफ इंडिया, बट टिल द टाइम जो भी लॉज बीच में बने वो लॉज किसने बनाए हुए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने वो लॉ बनाए हुए थे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट फैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ यू गॉट इज दैट दिस लॉ हैज बीन क्रिएटेड और मेड एनेक्टेड. हाँ, एक वर्ड होता है लॉ जो बनता है ना, लॉ बनता है तो एनेक्टेड वर्ड यूज किया जाता है. जैसे जनरली ऐसे नहीं बोलते कि लॉ इज अ मेड. हाँ, तो जनरली वर्डिंग क्या होता है, लॉ इज एनेक्टेड इन द ईयर पास्ट, PASSED, या तो पास्ट बोलेंगे वो, दिस लॉ हैज बीन पास्ड इन द ईयर 1872 और दिस लॉ हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर 1872. तो वो एक दो वर्ड जनरली, हाँ, या तो पास्ट बोलते हैं वर्ड लॉ को वर्डिंग यूज करते हुए, या फिर लॉ हैज बीन सेड टू बी एनेक्टेड, ऐसे वर्डिंग कभी कभी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है. हाँ, नाउ आते हैं हम लोग इस हिस्से पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हाँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अब ना इज इट लाइक दैट कि कॉन्ट्रैक्ट ओनली टाटास, बिरलास या अंबानी करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए वाला ट्रांजैक्शन होगा, लाखों रुपए वाला ट्रांजैक्शन होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या वहां पे? आंसर ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, बोलो नो. इफ आई वेंट ऑन अ पेट्रोल पंप एंड पुट अ पेट्रोल इन माई व्हीकल, ओके, मैंने ऑफर की मुझे पेट्रोल चाहिए, उसने हाँ बोला, पेट्रोल डलवा दिया, पैसे ले लिए, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, क्या हो गया बोलो वहां पे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया वहां पे? सिंपल सा एग्रीमेंट हो गया. वो एग्रीमेंट प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट है, तो इसकी वजह से वो इमीडिएटली क्या बन गया बोलो? कॉन्ट्रैक्ट बन गया. इतना तो दूर की बात है. हाँ, मुझे आधा किलो टमाटर खरीदना है. आई वेंट टू द वेजिटेबल मार्केट. हाँ, ask her lady who was selling that particular vegetable, that Mosi, will you give this tomato to me? I want half kg tomato. She said yes, I will give. She take a money and gave me the tomato. Again, I make a contract there on simple. Huh? I want to send some books to my friend. I make a courier. Huh? That is also considered as a contract. Very simple. I want to order a pizza. I called a pizza center and told that I want one pizza. They said okay, we will send. हाँ, and accordingly they send the pizza. क्या हो गया बोलो? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया. हाँ, सो अगेन सिंपली मैंने कहीं पे रेस्टोरेंट में गई और मैंने एक कप चाय खरीदा, वहां पे भी मैंने क्या कर दिया बोलो? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांजैक्शन है, इट्स नॉट लाइक दैट इफ यू आर डूइंग बिगर ट्रांजैक्शंस ओनली इन दैट केस वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म आता है. नो, अ सिंपलेस्ट थिंग you are doing any kind of the transaction that may be considered as a contract if it is satisfying all the legal requirement. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, कोई वेजिटेबल सेलर भी करता है, कोई ग्रोसरी शॉप का ओनर भी करता है, आप रिक्शा ऑटो बुक करते हो तो भी आप क्या कर रहे हो बोलो? वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ अवर डे टू डे ट्रांजेक्शन. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे किसका हिस्सा है बोलो? हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हिस्सा है. इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है बोलो? बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ को और एक वर्ड होता है मर्केंटाइल लॉ. हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस लॉ मर्केंटाइल लॉ क्या है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट है. ये जो पर्टिकुलर लॉ है, ये लॉ किसको रिलेट करता है? देखो, ये लॉ रिलेट करता है टू दोज पार्टीज हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो सारी चीजें इस लॉ में क्या की गई है? स्पेसिफाई की गई है. हाँ, एंड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता है तो उसका सोल्यूशन भी इस लॉ में क्या किया गया है? दिया गया है. हाँ, it also provide the solution for those who are not able to fulfill their promise. जो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते उनके लिए सॉल्यूशन भी कौन सा लॉ देता है बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे देता है. हाँ, नाउ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे अराइज होता है. हाँ, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग पॉइंट? नोटबुक में नोट डाउन करके रखो. आपको दो फ्रेजेस, हाँ, एक याद रखो. अब हमें हमारे मॉड्यूल में ना लैटिन फ्रेजेस आ जाएंगे, जैसे हमें सेक्शंस याद रखने हैं, फ्रॉम सेक्शंस अगेन केस लॉज याद रखने हैं. वैसे हमें एक तीसरी चीज जो बाय माउथ लर्न करनी है, वो बाय माउथ लर्न करनी है, वो चीज है फ्रेजेस. हाँ, फ्रेजेस होंगे लैटिन फ्रेजेस, एंड उसका हमें इंग्लिश मीनिंग क्या करना है? याद वहां पे रखना है. हाँ, नाउ दो फ्रेजेस आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रखो. नंबर 1, लॉ इन पर्सनम, जो वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, लॉ इन पर्सनम, एंड
दूसरा वर्ड साइमल्टेनियसली थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लाइन के नीचे इमीडिएटली मेंशन करके रखो, वो है लॉ इन रेम, REM, लॉ इन रेम, REM। 2 फ्रेजेस साइमल्टेनियसली अपने नोटबुक में मेंशन करके रखो, लॉ इन पर्सनम, एंड सेकेंड फ्रेज जो मेंशन करो वो क्या है वहां पे, लॉ इन रेम आप वहां पे मेंशन करके रखो। नाउ सी व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टू टर्म। सी, जो लॉ हाँ एप्लीकेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली है, या जिस लॉ के अंदर दिए गए राइट्स एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एप्लीकेबल होते हैं ना, उसको बोला जाता है लॉ इन पर्सनम। लॉ इन पर्सनम के आगे मीनिंग क्या डालोगे, लॉ इन पर्सनम मीन्स हाँ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। एंड लॉ इन रेम के आगे मीनिंग क्या डाल दोगे, अगेंस्ट हाँ पर्सन इन जनरल, अगेंस्ट होल द वर्ल्ड, अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। ये वाला मीनिंग ज्यादा स्पेसिफिकली डालो, अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। अब इसका मतलब क्या, आपको क्वेश्चन मार्क होगा। हाँ, I'll give an example to you to understand this particular two terms, law in personam and law in rem. Meaning wise mention कर दिया आपने, law in personam मतलब क्या हो गया बोलो, against a particular person, and law in rem मतलब क्या हो गया बोलो, against a world at large, against a person in general. Okay, now आते हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 कैसा है, लॉ इन पर्सनम है, कैसा नहीं है, लॉ इन रेम नहीं है। हाँ, नाउ व्हाई लाइक दिस आई विल एक्सप्लेन यू। we'll just take out first of all one example. Now देखो क्या गया यहाँ पे, one person called as a Madhav asked to sell his house to the रोहित। माधव ने रोहित को बोला कि रोहित आप अपना घर मुझे क्या कर दो, बेच दो। हाँ, माधव ने क्या किया बोलो, रोहित को बोला कि माधव आप अपना घर मुझे बेच दो, मुझे घर खरीदना है। रोहित को भी घर बेचना था। रोहित also agreed, yes okay माधव आई एम एग्रीइंग टू सेल यू माय हाउस फॉर ₹5 लाख। हाँ, तो माधव और रोहित के बीच में क्या हो गया बोलो, माधव और रोहित के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपको ध्यान में आ गया, माधव आस्क्ड रोहित टू सेल हिज हाउस, रोहित आल्सो एग्रीड टू सेल द हाउस टू द माधव। तो रोहित अपना घर 5 लाख के लिए माधव को देगा और माधव रोहित को 5 लाख रुपए दे देगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट which is created between Madhav and Rohit. Now what happens, see, because of the fluctuation in the market, suddenly उस घर की कीमत क्या हो गई पता है, मार्केट रेट उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया अच्छा खासा, और रोहित को कोई और एक श्याम नाम का लड़का उसी घर के लिए 7 लाख रुपए दे रहा है। तो रोहित ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और वो माधव को घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये किसके बीच में था बोलो, माधव और रोहित के बीच में था। हाँ, नाउ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो एक्शन कौन किस पे ले सकता है बोलो, अगर माधव मेक अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रोहित कैन टेक एक्शन, एंड इफ रोहित मेक अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट माधव कैन टेक एक्शन। ओके, तो ये लॉ इन पर्सनम है क्योंकि माधव हैव अ राइट अगेंस्ट द रोहित ओनली एंड रोहित हैव द राइट अगेंस्ट द माधव ओनली। अगर कॉन्ट्रैक्ट रोहित ने ब्रीच कर दिया तो कैन यू टेल मी दैट, या कैन यू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट कैन रोहित और माधव छोड़ के, लाइक मैं गई रोहित और माधव के बीच में और रोहित जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है तो मैंने सूट फाइल कर दी वहां पे कि रोहित आप सूट कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रीच कर सकते हो, मुझे कोई हक है क्या वहां पे, आई डोंट हैव एनी राइट अगेंस्ट द रोहित। हाँ, रोहित के अगेंस्ट अगर एक्शन लेने का हक है तो ओनली किसको है, माधव को। माधव के अगेंस्ट एक्शन लेने का हक है तो ओनली किसको बोलो, रोहित को। तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट पर्सनल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पर्सन ओनली एंड दैट 2 पर्सन ओनली कैन टेक एक्शन। वो 2 लोग ही क्या कर सकते हैं, वो लोग वहां पे एक्शन ले सकते हैं, इसको बोला जाता है लॉ इन पर्सनम। लेकिन समझो मुझे जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई भी आके मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है, ये राइट मुझे ओनली माधव या रोहित या सोहित या मोहित के अगेंस्ट है क्या, वहां पे नहीं, ये राइट मुझे पूरे दुनिया के अगेंस्ट है। तो जो इंडियन पिनल कोड है ना, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। हाँ, इंडियन पिनल कोड इज अ लॉ व्हिच डिफाइन ऑल द क्राइम एंड पनिशमेंट फॉर द क्राइम। अब ये इंडियन पिनल कोड में जो प्रोविजंस है वो क्या बोलो, राइट इन रेम है। इंडियन पिनल कोड कौन है, राइट इन रेम है। हाँ, मुझे दुनिया का कोई भी आके
बिना वजह मार नहीं सकता, बिना वजह मेरे घर में चोरी नहीं कर सकता, बिना वजह मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता। ये जो मेरे सारे राइट्स है, ये सारे राइट्स क्या बोला, राइट इन अ रेम कंसिडर किया जाता है। इन सारे राइट्स को क्या कंसिडर किया जाता है, राइट इन अ रेम कंसिडर किया जाता है इन सारे राइट्स को। हाँ, क्योंकि दिस राइट इज नॉट ओनली अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली, दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इसलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है बोलो, राइटिंग पर्सनल कंसिडर किया जाता है। आयरन में सो लॉ विच इज protecting the right between only that two person among whom the contract is made is called as a law in personam, against a particular person only, and the law which protect the right against the world at large is called as a right in a rein. Now देखो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पहले सेल ऑफ गुड्स करके चैप्टर था। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही पहले इंडियन पार्टनरशिप करके चैप्टर था, लेकिन ना जैसे जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की ग्रोथ होती गई वैसे वैसे ऐसे ध्यान में आया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की अलग से जरूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा और स्पेसिफाई करने की जरूरत है वहां पे, इसीलिए अलग से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया और अलग से इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उन्होंने क्या किया, बनाया। तो पहले सेल ऑफ गुड्स वाज अ चैप्टर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको बाद में सेपरेट किया गया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अलग से एक्ट बनाया गया। सेम विद द पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप वाज अ chapter in the Indian Contract Act only, but after that it was separated from the law of contract and separate Indian Partnership Act 1932 को क्या किया गया, वहां पे बनाया गया। ओके, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनल स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या था, देखो टोटल 266 sections were there in the original Indian Contract Act. Then original Indian Contract Act में क्या था बोलो, total 266 section थे। हाँ, now out of that total 266 section, number 1 to 75, number 1 to 75 general principles of the contract है। और आपका अभी सीए फाउंडेशन का जो लॉ का सिलेबस का कॉन्ट्रैक्ट वाला हिस्सा है उसमें ओनली इतना ही पढ़ना है। हाँ, सेक्शन 1 to 75 ओनली नहीं है, वो बहुत डीप है, बट स्टिल सेक्शन वाइज बात करें तो 1 to 75 सेक्शंस जो है वो आपके सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ सिलेबस के कॉन्ट्रैक्ट हिस्से में हमें क्या करना है, डिस्कस करने, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे बोलो, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस करेंगे। हाँ, देन सेक्शन ओरिजिनली 76 to 123 क्या था बोलो, सेल ऑफ गुड्स। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि प्रीवियसली सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, लेकिन इस हिस्से को क्या कर दिया, बाद में रिपील कर दिया। लॉ जब कैंसिल होता है ना, रद्द होता है ना, तो उसको वर्डिंग क्या यूज किया जाता है बोलो, रिपील। हाँ, बाद में 1930 में 76 सेक्शन से लेकर 123 सेक्शन तक को सेक्शंस को क्या कर दिया उन्होंने, रिपील कर दिया, और उधर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या कर दिया, सेपरेट एक्ट एनेक्ट कर दिया। ओके, देन ये जो तीन बीच में हिस्से दिख रहे हैं ना आपको, ये तीन हिस्से आप क्या करोगे, आपके इंटरमीडिएट कोर्स में आपको इसको पढ़ना है। हाँ, सेक्शन 124 to 147 जो है वो दो कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो हिस्सा, ये क्या बोलो, सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये सेक्शन 1 to 75 जो है ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसको एप्लीकेबल होंगे ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसमें दिए गए, सेक्शन 1 to 75 में। एंड एक्चुअली 76 से लेकर 266 तक सारे क्या थे बोलो, सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थे। उसमें से कौन से दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रिपील कर दिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, सेक्शन 76 to 123 सेल ऑफ गुड्स को रिपील कर दिया, और वहां पे रिपील करने के बाद सेपरेट लॉ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया। और वापस सेम पार्टनरशिप में भी सेक्शन 239 to 266, हाँ, पार्टनरशिप का क्या था वहां पे स्पेसिफिकली दिया गया, पार्टनरशिप का वहां पे
चैप्टर था, लेकिन उस चैप्टर को भी क्या कर दिया बोलो, वहां से रिपील कर दिया और एक सेपरेट एक्ट पार्टनरशिप पे बनाया। कौन सा सेपरेट एक्ट पार्टनरशिप पे बना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये वाला हिस्सा रिपील्ड, ये वाला हिस्सा रिपील्ड, सेल ऑफ गुड्स चैप्टर रिपील्ड, पार्टनरशिप चैप्टर रिपील्ड। हाँ, तो एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन कितने बोलो? फर्स्ट 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, देन ये आपको तीन जो बीच के हिस्से ये इंटरमीडिएट में पढ़ना है। हाँ, सेक्शन 124 to 147 इंडेमनिटी एंड गारंटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। देन सेक्शन 148 to 181 बेलमेंट एंड प्लेज एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड सेक्शन 182 to 238 एजेंसी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा शायद, ये मीनिंग क्या है? इंडेमनिटी मतलब क्या, गारंटी मतलब क्या, बेलमेंट मतलब क्या, प्लेज मतलब क्या, एजेंसी मतलब क्या? हाँ, देखो एक्चुअली इसका रेफरेंस आपको अभी कहीं नहीं आने वाला है, बट जनरली पढ़ाते हुए कोई भी नया वर्ड आता है तो वो विदाउट मीनिंग बताए छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके माइंड में डाउट रहता है कि इसका मीनिंग क्या है। इसीलिए जस्ट आपको फटाफट 2 मिनट में एग्जांपल बता के ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट की क्या बताती हूँ, मीनिंग बताती हूँ। हाँ, तो अटेंशन दो। इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है। हाँ, देखो लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। हाँ, ए हाँ नाम का एक पर्सन है, ओके, ये क्या हो गया, बी के शॉप में गया। ए नाम का पर्सन बी के शॉप में गया, ठीक है, ये लेके जाता है सी को शॉप में। ए वेंट टू द शॉप ऑफ अ बी टेकिंग सी विथ हिम। हाँ, ए बी को क्या बोलता है, ए बी को क्या बोलता है वहां पे कि सी को जो भी माल चाहिए आप उधार दे दो, गिव द सी गुड्स ऑन अ क्रेडिट। हाँ, इफ ही डिड नॉट पे आई विल पे, इफ ही डिड नॉट पे आई विल पे। हाँ, इससे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हाँ, इसमें तीन पार्टीज है। तीन पार्टीज कौन है बोलो वहां पे? मेन कर्जा यहाँ पे कौन ले रहा है, उधार माल कौन ले रहा है? सी। तो सी जो है वो कौन बन गया बोलो? डेटोर। सी कौन बन गया? डेटोर। हाँ, और ए कौन बनता है बोलो? गारंटर। ए गारंटी देता है ना कि आई गारंटी कि आपको सी पैसे दे देगा। सी ने अगर आपको पैसे उधार माल के नहीं दिए देन आई विल पे। तो बी कौन है बोलो? क्रेडिटर। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? श्योरिटी एश्योरिटी देता है कि डेटोर पैसे दे देगा, बट इफ ही डिड नॉट पे आई विल पे। उसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज क्या बोला जाता है इसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉल किया जाता है। हाँ, ये जो जी है ना गारंटर। हाँ, ए promises B that give the goods on a credit to the C. C ने पे नहीं किया तो I will pay. This is called as a contract of a guarantee. आए दिन में कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले रहा है। इसके अपोजिट साइड देखो, वापस सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ए बी को लेके सॉरी ए सी को लेके बी की शॉप में जाता है। ए वेंट इनटू द शॉप ऑफ अ बी टेकिंग सी विथ हिम। और अब ए बी को क्या बोलता है? लेट द सी हैव द गुड्स व्हाट ही वांट, let the C have the goods what he want. I will pay for it. I will pay for it. मतलब ना इसमें C का रोल टोटल क्या है बोलो? पैसिव है। C का कोई एक्टिव रोल है ही नहीं इसमें। डायरेक्टली इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हाँ, इसमें दो ही पार्टी है। कौन दो पार्टी है बोलो? ए और बी है। ए प्रॉमिस करता है डायरेक्टली बी को कि सी को जो भी माल चाहिए आप दे दो, मैं उसके पैसे दे दूंगा। इसको क्या बोला जाता है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोला जाता है कि जिसमें ये जो ए है, हाँ, ये इंडेमनिटी देता है ना, उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर। और जिसको वो इंडेमनिटी दी है उसको बोला जाता है इंडेमनिटी होल्डर। हाँ, तो ए इस बी को इंडेमनिटी देता है कि उसको जो माल चाहिए आप दे दो, आई विल पे यू। हाँ, मतलब इसका रोल क्या है बोलो? सी का पैसिव रोल है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे पेमेंट करने की कौन ले रहा है बोलो? यहाँ पे ए जो है ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है वहां पे? खुद पे ले रहा है। सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। श्योरिटी और गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में तीन लोग थे क्योंकि उसमें सी का रोल था एक्टिव। पहले पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे थी बोलो? सी पे। और सी ने पे नहीं किया तो कौन पे करने वाला है वहां पे? ए इज गोइंग टू पे इन दैट पर्टिकुलर केस। हाँ, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। गारंटी में तीन पार्टीज है, इंडेमनिटी में दो ही पार्टीज को क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। नाउ गॉट द पॉइंट। ये जो इंडेमनिटी है इसमें इंडेमनिटी होल्डर जो है
वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है, खुद पे ले रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बोलो, डेटोर की। श्योरिटी बोलता है कि डेटोर पैसे दे देगा, अगर डेटोर ने पैसे नहीं दिए तो आई विल पे फॉर इट। सो यहाँ तक का मटेरियल ध्यान में आ गया। सेक्शन 1 to 75 which is our CA Foundation Business Law syllabus, general principles of the law of contract which is applicable to the all type of a contract। पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ गुड्स पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया, पार्टनरशिप का सेपरेट एक्ट बना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स का सेपरेट लॉ बना सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाँ, एंड ये जो बीच के इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी है, इसको क्या किया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म में वैसे ही रखा गया, अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वो ऐसे ही है जो आपको आपके इंटरमीडिएट लेवल पे स्टडी करना है। अभी हमने किसका मीनिंग देखा बोलो, इंडेमनिटी और गारंटी का मीनिंग देखा। हाँ, नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द मीनिंग ऑफ बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी।